شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے. آج دھرنا پروگرام آپ کی خدمت میں ہوں اکرم بنگورزئی. ناظرین، ہم جتنی مرتبہ کوشش کرتے رہے ہیں اس پروگرام میں جن جن لوگوں کے مسائل، جن جن لوگوں کے ایشوز، جن جن لوگوں کے تکالیف، ان کو دھرنا پروگرام میں شامل کیا ہے. آج قدرے مختلف ہے. آج ہم نے ان لوگوں کو دھرنے میں لیا ہے جو دھرنا دینے ریلی جا رہے تھے اور وہ دھرنے کی موڈ میں تھے، اور آج یہ تصور کیا جائے کہ آج انہوں نے ہمارے پروگرام میں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں اپنے مسائل، اپنے ایشوز پہ. یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو معاشرے کی، حکومت کی سرپرستی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انتہائی حساس ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خطے کے علاوہ ملک کا، صوبے کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سفیر تھے اور سفیر ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک کے پرچم کو پوری دنیا میں بلند کیا ہے. آج ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ان لوگوں کے گھر میں نان شبینہ کے لیے مجبور ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کن کو ہم نے بٹھایا ہے. ہم نے ان نامور فنکاروں کو، گلوکاروں کو، شاعروں کو آج اپنے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے، اور اس میں بڑے نامی گرامی موسیقار، بینجو نواز، شاعر اور 2 مرتبہ صدارتی ایوارڈ سے نوازا جانے والا شخصیت اور ان کے والد، دنیا موسیقی میں ایک نام، فیض محمد بلوچ. کیا ان کی آواز تھی، لوگ جھوم اٹھتے تھے. میں تو یہ کہوں کہ فیض محمد بلوچ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. ان کی آواز دل کی گہرائی تک جاتا تھا. آج ان کے صاحبزادے تاج محمد تاجل ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم تاجل صاحب. وعلیکم السلام. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، آج ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں بہت ہی معروف، مقبول، عوام کی دلوں پہ راج کرنے والا، عوام کی دلوں میں ایک بہت بڑا مقام رکھنے والا شخصیت، یعنی لبوں پہ. میں کیا کہوں اس کے بارے میں؟ لبوں پہ جو چیز آئے وہ تو پھر دل میں ہوتی ہے نا. ایشیائی چیمپئن جسے ہم کہتے ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ استاد محمد بشیر. السلام علیکم استاد محمد بشیر صاحب. وعلیکم السلام صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے. آج ہماری فریاد آپ پیش کر رہے، ہمیں بہت خوشی ہے. بہت شکریہ آپ کا. تیسرے مہمان، ایشیائی انٹرنیشنل لیول پہ بلوچی چاپ کے اپنا لوہا منوانے والا، بلوچستان کی کلچر کو منوانے والا، بلوچستان کی ثقافت کو دکھانے والا گل بہار، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم گل بہار صاحب. وعلیکم السلام صاحب. ٹھیک ٹھاک. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے تاج محمد مغر مان والا. السلام علیکم. ناظرین، آج گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ واحد پروگرام ہے جس سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ درد ان کا نہیں، یہ میرا ہے. یہ درد ہمارے تمام معاشرے کا ہے. یہ درد اللہ کرے کہ ان حکمرانوں کے دلوں تک پہنچے جو آج ان کی دلوں میں ہے. آج جس تکلیف سے یہ گزر رہے ہیں، آج ان کی ساری تکلیف، سارے دکھوں میں ان کے برابر کے شریک ہیں، اور ہم یہ امید رکھیں گے کہ آج کی گفتگو آپ کے دلوں میں بھی راج کرے، آپ کے دلوں میں بھی بس جائے. آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. ویسے تو سب سے بڑا مدد کرنے والا رازق میرا رب ہے، وہی ایک کارساز بنے گا. آج کا پروگرام ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ایک وسیلہ بن جائے. سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تاج محمد تاجل صاحب سے، جو کہ اب تک 5 کروڑ سے زیادہ موسیقی کمپوز کر چکے ہیں. 5 کروڑ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ آنے والی بات. تاج محمد صاحب، اتنا بڑا نام، اتنی بڑی شہرت، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا بیک گراؤنڈ آپ کا موسیقی کے حوالے سے، آج آپ کہاں سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ جو ہے مارے پھر رہے ہیں؟ کیا ہے
कौन सी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से आप लोग इतने पीछे चले गए हैं? हालांकि मौसीकी की दुनिया तो आगे जा रही है, आप लोग क्यों इतने पीछे हो गए हैं? क्या इश्यूज़ हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशूज़ ये है कि हमने काम किया, काम से नाम होता है। दुनिया जानता है कि फैज़ मोहम्मद बलोच ने कितना काम किया, ताज मोहम्मद ताजल ने कितना काम किया। सदारती अवार्ड वैसे नहीं मिलता है। तमाम बलूचिस्तान का आर्टिस्ट जितने भी हैं, बलूचिस्तान से भी आगे जो भी आर्टिस्ट मुझे मिला मैंने टीवी में लाया है। ये नहीं समझा कि आज हमारा हाल ये बुरा होगा। अगर ये हाल मैं देखता था, एक आर्टिस्ट भी मैं टीवी के लिए नहीं लाता था। क्यों? कि हमें बहुत दर्द दिया है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। इतने तक सलाम नहीं देते हैं जब हम टीवी आजकल घुसते हैं, सलाम नहीं देते हैं। इसलिए मेरा एक जहन में बात आ रहा है, सीनियरों का ये दुश्मन है। सीनियर जो सीनियर जिनको दुनिया जानता है, कम से कम 2 लफ्ज़ तो सुनो। खुदा पे इस तरह भी करो, खुदा भी सुनेगा। ये नहीं सुनते जो बिताया इन्होंने। क्यों? हमारा दिल जलता है। हमारे पास आर्टिस्ट आते हैं, हमारे पास जो है फीमेल आते हैं, रो के चला जाते हैं। मेरे दिल का दर्द नहीं उठता। क्यों? कि शुरू में तो 1966 में मैं आया हूँ। रेडियो पाकिस्तान टीवी नहीं था। मेरा वालिद था, छोटा था मैं, उधर मुझे लाया गया है। हम बेटे उधर मुझे सिखाया है। उधर काम उससे अच्छा था, मैं बेकरी में काम करता था इससे पहले। वो अच्छा था मेरे लिए, उन्हें बिस्कुट तो खाते थे। फिर 1974 में टीवी आया है। पीरज़ादा भुट्टो का दौर था, उसने ओपनिंग किया टीवी का। म्यूज़िक का मैंने किया 70 एटम मैंने पेश किया। बलूचिस्तान में कोई कंपोज़र नहीं था। तारीख देखे, रेडियो देखे, टीवी देखे, अदारा देखे। ताज मोहम्मद ताजल था पहला कंपोज़र पीटीवी का। पीटीवी का पहला कंपोज़र ताज मोहम्मद ताजल, जो कि टीवी को सजाया है। एक एक ईंट रखा है। उससे पहले मेरा वालिद साहब फैज़ मोहम्मद बलोच को जब उसका प्रोग्राम आता था टीवी में, खुदा पे यकीन करे दुनिया टीवी पे जमा था। फैज़ मोहम्मद बलोच आ रहे हैं, वो दिन याद रखें टीवी वालों। टीवी में जो उसने जो एटम जो गाया है, रोज़ाना मुझे याद है रात को नया नया एटम बनाता था, नया नया, हर स्टेट में नया नया पेश करता था। आज वही एटम जो हैं तमाम शादी ब्याहों में लग रही है। कहने का मतलब ये है कि हमने दिल में दर्द रखा है। हमारा रेसर रूम को बंद किया गया है, बंद किया गया है। रेसर रूम को बंद किया गया है। कहाँ पे? पीटीवी। अच्छा। एमडी से बात करते हैं, सुनते ही नहीं है। ऑपरेटर मिलाता है, कभी इधर है कभी उधर है। प्रोग्राम डायरेक्टर से बात करते हैं इस्लामाबाद, सुनते ही नहीं है। क्यों भाई? उस टाइम सुनता था तो 2-2 गाड़ियाँ बेचता था रेडियो पाकिस्तान। वही ताजल है, आज भी है। मगर क्या काम लेने वाला नहीं है, क्योंकि खुद जो काम आवे जो लेवे नहीं। हमने काम दिखाया। अब जितने भी मौसीकी चल रहे हैं टीवी में, सबको पता है कि मौसीकी ताज मोहम्मद ताजल, ताज मोहम्मद ताजल जितने भी चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, कल भी चलेंगे। मगर इज़्ज़त तो दो, सलाम तो दो। अल्लाह का कलाम है। आप हमारे लिए बैठे हुए हैं, फनकारों के लिए बैठे हुए हैं। फनकार के लिए आप तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका रोज़गार खोल दो। देने वाला खुदा का ज़ात है। फ़िरौन मत बने, फ़िरौन मत बने। क्योंकि अगर ऊपर अल्लाह को देखे, ऊपर अल्लाह को देखे, खुदावंद करीम बहुत बड़ा है, आप लोगों से बड़ा वही है। मगर फनकारों का इज्जत तो करो। आप ठीक है प्रोग्राम मत दो, ज़रूरत नहीं है। रेसर रूम तो हमारा खोल दो ताकि हम कल्चर को आगे बढ़ा सकें। हम फ़न मौसीकी, बिरावी, बलोची, पश्तो को आगे ले चले। 2 बंदे बैठ के, वो मुझे मशवरा देगा, मैं उनको मशवरा देगा, तब जाके स्टेशन चलेगा। बैरूनी मुल्क हम लोग गए, जिधर भी जाते हैं हम लोग। आप कौन कौन से ममालिक गए? मैं गया हूँ लंदन गया हूँ, मैं अमेरिका गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, आधा कंट्री में घूम के आ गया हूँ। मगर हमें हर जगह ऑफ़र मिला है। जिस तरह सवाल किया सर ने, अच्छा हर जगह ऑफ़र मिला है कि आप यहीं हो जाओ। क्या करेंगे वहाँ बलूचिस्तान में? मैंने कहा उसका 10 रुपया भी मेरे लिए बहुत है, तुम्हारा 20 रुपया भी हमारे लिए कम है। बैरूनी मुल्क अमेरिका मैंने कहा है। फिर उसके बाद एक टीम आया था, जैसे अताशात तो बड़ा नाम है, बहुत शायर हमारा
अतशात। तो वो रेडियो में था प्रोड्यूसर, हमारा पहला प्रोड्यूसर। तो हम दोनों मिल के बलूची, बिलावी, पश्तो को आगे बढ़ा दे। उस टाइम हम लोग ने आगे बढ़ाया उसको। मगर अफसोस है यार, टीवी में जाओ कोई पनकारी नहीं है, कोई बंदा नहीं है उसमें। गेट दे के वापस हम मुड़ जाते हैं, बाहर जाते हैं गेट देख के। इस तरह हमने 1966 से मैं लगा हुआ हूँ। 1974 में टीवी आया, मुझे ले गया है बाहैसियत कंपोज़र। मैं रेडियो का भी बैंजो प्लेयर था, कंपोज करता था। 40 साल मैंने पेमेंट नहीं लिया कंपोज का रेडियो में, ये मेरा रिकॉर्ड है। शायरी में शौकिया हूँ, शायरी मैंने शौकिया किया है, वो भी बज रहे टीवी रेडियो में। मगर सीनियरों को दबाओ मत पैरों के नीचे, इनका बदवाई ख़राब है, याद रखना। आज हम रिटायर हुए हैं, कल आप रिटायर होंगे, फिर मैं आपको सलाम दूंगा कि रिटायरमेंटी में क्या है और अफसरी में क्या है। ये सीट किसी के नहीं होता है। मगर हमारा हेडक्वार्टर को भी ख्याल करना चाहिए कि किस लिए बेचते हैं। कसमनामे पे भेजो, सीनियरों का कदर करो। जैसे जीएम थे पुराने हमारे, करीम बलोच था, मोहम्मद नवाज मक्सी था, कांसी साहब था, बहुत सारे, माजुल्ला जमालदीनी साहब था, बहुत, सबके साथ मैंने काम किया। जितने जीएम के तस्वीर लगे हुए सबके साथ मैंने मिजुक दिया है, मैंने काम किया है। थोड़ा एहतराम ज़रूरी है, हमारा दिल बढ़ जाएगा। चले, आप अपने जज्बात पे ताज मोहम्मद ताजल साहब आप कंट्रोल रखें। मैं आगे बात करने जा रहा हूँ उस्ताद मोहम्मद बशीर साहब से, जो कि मारूफ सिंगर। उनका कद अगर नापा जाए तो आसमान से जाके मिलता है। उनकी आवाज़ को अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सुना गया है। उस्ताद बशीर साहब, क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं? क्या हालात हैं? कैसी है आपकी ज़िंदगी, आपकी मौसीकी, आपका जहान कैसा है? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं। बस सूखा रोटी खाकर भी शुक्र अदा करते हैं। हमने 1935 में रेडियो में हम सरियाव रोड में वो रेडियो खुला था। 3 रुपया 5 रुपया में गाने का बच्चा था मैं, 10 साल का। आज मैं 80 साल का हूँ। ये लोग 70 साल मैंने खिदमत की है। मैं कहता हैरान हूँ, या अल्लाह क्यों भूल जाते हैं हमें। अगर कोई पैसा गवर्नमेंट देता है कि भाई इन पर बांट दो, तो वो बांटा नहीं जाता है। 20 करोड़ एक दफ़े आया, वो भी नहीं मिला। 5 करोड़ अभी आया है, वो भी नहीं मिला। अरे भाई अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, पेट तुम्हारा अल्लाह भरेगा। हम लोग का ख्याल करो। हम 80 साल के हो गए, अभी मैं काम कर सकता हूँ, न भीख मांग सकता हूँ, न अवार्ड मुझे किसी को दूँ तो मुझे आटा भी नहीं देगा। बोलता मैं कि मेरे काम के तो नहीं है ये। मैं अल्लाह ताला से फरियाद करता हूँ, अल्लाह या इनको समझा दे, अल्लाह ताला इनके दिल में मोहब्बत डाल दे कि हम फनकार, हम हमें सफ़ीर कहते हैं। और बाजी बोलान के फनकार आ रहा मोहम्मद बशीर बलोच, तो सारे लोग वजीर सब ताड़ियाँ बजाते। जब मेरा भूखा हो जाए तो इस टाइम भी हमारा तवज्जो करो ना हमारी तरफ। यार अल्लाह से डर के तवज्जो कर दो हमारी तरफ। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अल्लाह की कसम है कि मैं क्या बताऊँ कि क्या मैं क्या गुजारा कर रहा हूँ, वो अल्लाह को पता है। एक मकान है मेरा, आधा मकान मैंने 7,000 में दिया है, और एक बच्चा है मेरा, वो काम करता है, ये 10,000 वो लेता है। इस पर मैं गुजारा करता हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो फरियाद भी नहीं कर सकता, भीख भी नहीं मांग सकता। कोई और काम सीख लेता, नाई का काम सीखते थे भी हमारा गुजारा हो जाता। खुदा की कसम, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। हमारे बच्चे कुर्बान हैं इस वतन के लिए, हम कुर्बान हैं। मेरा वतन दिल का चमन, ये अंजुमन वो अंजुमन हो, इस खाक में जो धूल है मेरी नज़र का फूल है। मेरा वतन दिल का चमन, ये अंजुमन वो अंजुमन। हम जिंदगी भर कब्रिस्तान तक पहुँचेंगे, हम वतन को नहीं भूलते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जान देंगे, खिदमत करते रहेंगे। पाकिस्तान बलूचिस्तान दोनों सब हमारा है ना। वो चले, मैं बात करता हूँ गुलबहार से, जो कि इंटरनेशनल जो है बलोची रक्स, यानी उसको चाप भी हम कहते हैं, बलोची रक्स के बड़े माहिर हैं। और एक टीम के साथ वो जो है जब स्टेज पे आते हैं तो एक टीम के साथ आते हैं, और उसके साथ अपनी जो है एक यूनिफॉर्म, स्पेशल यूनिफॉर्म इनकी होती है, जो बलोची
कल्चर के मुताबिक होता है, जो कि इंटरनेशनल मुकाबले भी जीत चुका है और उसके चैम्पियन खुद को बताता है। गुलबहार, आप बताएं कि कैसे सेहत ठीक है? अभी भी आप उसी तरह से नाच डांस और ये कर सकते हैं, और हालात कैसे हैं? ठीक है? पहले तो अकरम बंगुल जी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। उस्ताद ताज मोहम्मद ताजल साहब भी बैठे हैं, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उस्ताद मोहम्मद बशीर साहब बैठे हुए, मैं उसका भी शुक्रिया करता हूँ। अकरम बंगुल जी साहब, मैं क्या बताऊँ, हज़ारों दर्द है दिल में इन बेकदर ऑफिसरों से, ये नायल अफसरों से, जो कि हम लोग को फ़न को ऐसा बेकदर करके छोड़ दिया। हम लोगों ने अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिया इनके लिए, मगर इन्होंने कोई कदर हम लोग का नहीं किया। हालांकि आज हमारे अगर हालत को देखें, हमारे फ़नकारों का हालत को देखें, हमारे बलूचिस्तान साज़ आवाज़ फारम के जितने भी फ़नकार हैं, वो बेचारे किस हाल पुरसी में, शायद आप उनको देखें तो आप रोने लगेंगे सर, इतना दर्द भरा हुआ है। अभी जैसा कि हमारे सूबों का, जो पूरे पाकिस्तान का सर में बात कर रहा हूँ, 3 सूबों को फ़ंड मिल रहे हैं। जब फ़ंड का कूक का बात आता है तो हमारे बलूचिस्तान के जितने भी अफसर हैं, जैसा लगता है सोए हुए हैं। हमारे बलूचिस्तान में ऐसा लगता है कोई फ़नकार ही नहीं है। फ़नकारों के लिए तो उन्होंने गेटों को बंद कर दिया सर। टीवी जाओ तो टीवी वाले बोलते हैं जाओ जाओ, तुम लोग के लिए प्रोग्राम नहीं है। रेडियो जाओ तो कहते हैं हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो कल्चर डिपार्टमेंट में जाओ, कोई 23 मार्च के हवाले से, कोई 14 अगस्त के हवाले से, कोई 6 सितंबर के हवाले से, कोई 25 दिसंबर के हवाले से, कोई क्या कल्चर डे के हवाले से, किसी और इवेंट के हवाले से, जिस कल्चर डिपार्टमेंट को सर हम लोगों ने अपना खून पसीना एक करके दिया, वही जो नायल अफसरान बैठे वही भी कदर नहीं कर रहे हम लोग की। जो हम लोग के जूनियर अफसर हैं, सीनियर भी नहीं है हम लोगों से। हम लोगों ने इसीलिए रोते भी और पछताते भी है सर कि हम लोगों ने अगर ये फ़ंड सीखा तो किस लिए सीखा। एक फ़ंड आया सर 20 करोड़ का, जो डॉक्टर मालिक साहब ने दिया। ऐसे ही उठ के इन्होंने अफसरों ने गठजोड़ बनाया, पता नहीं कैसे हाई कोर्ट में केस लगा दिया कि भाई फ़नकारों का बजट को बंद करो, फ़नकार खुद ब खुद ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। चलो भाई, वो तो हम लोग का जैसा भी किस्मत था वो गया, अल्लाह की तरफ से हो गया। यानी जालिम अफसरान ने किया। जजों को पता नहीं है, वकीलों को पता नहीं है, जो फ़नकारों का को रोके। जब आया इस कोरोना का एक वबा हम लोग के सर पर पड़ा, तो इसके लिए फिर एक फ़ंड आया 5 करोड़ कम फ़नकारों के लिए। फिर ये जो है फ़नकार दुश्मन जो हमारे सर पर बैठे फ़रौन, फिर इन फ़रौनों ने हम लोग के ऊपर दुश्मनी शुरू कर दिया। यार अपने बच्चों का सोचते हो, हम फ़नकारों का बच्चों के लिए भी सोचो। हम लोग का बच्चों को भी पेट है, वो भी जो है भूखे है। क्यों आप लोग इतना जुल्म करते हम लोग के साथ? अकरम साहब आप खुद ही सोचें, आप लोग के चैनल के तवस्सुल से हम लोग अपना आवाज़ पहुंचा रहे कि हम लोग के टीवी के रेसल रूमों को खोले, कम से कम उधर हम एक रेसल करेंगे, एक नया चीज़, एक नया तर्ज बनाएंगे, अपना एक नया काम को बढ़ाएंगे ना। मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने सूबे के लिए कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई उधर गलत काम तो नहीं किया कि आप लोग जो हम लोग के लिए जालिम बने हुए हो। अभी टीवी का गेट को छोड़कर हम लोग किधर जाएंगे, या कल्चर डिपार्टमेंट को छोड़कर हम लोग किधर जाएंगे, टीवी को छोड़कर हम लोग किधर जाएंगे? यही तो हम लोग के बच्चों की रोज़ी की जगह। वज़ीर आला ऑफिस में जाते हैं, उधर भी हम लोग के लिए दरवाजे बंद है। सेक्रेटरीट में जाते हैं, उधर रास्ते बंद है। सेक्रेटरी को बोलते जाते हैं। मैंने बोला उनको, वज़ीर आला के दफ्तर के सामने जो सिक्योरिटी वाले बैठे हैं ना, हमने उनको ये कहा कि ये तकमा इम्तियाज़ किस लिए मिला है मुझे? उसने कहा कि किस लिए मिला है, 133 अवार्ड लिया है। अच्छा, नवाब भावलपुर ने मुझे अवार्ड दिया नूर महल के अंदर। अच्छा, नेशनल अवार्ड मुझे दिया। ज़फ़रुल्लाह ने बुला के नेशनल का इब्तिदा मैंने किया। 1968 में और हमने चकलाला में प्रोग्राम किया। अच्छा, लोग विरसे को हमने चलाया, हम लोगों ने चलाया। मिन्नत करते थे लोग विरसे में, बलोच साहब आ जाओ हमारी मदद करो। ऐसे पता है एशिया का प्रोग्राम भी मैंने उधर जीता। ये डांस कर रहे थे बच्चों को, मैं 1983 में लाया हूँ डांस के। 1983 में ये बच्चों को मैं लाया हूँ, और इस्लामाबाद में मैंने प्रोग्राम कराया। ये मेरा उस्ताद है ताज मोहम्मद ताजिल, इसका भाई भी मेरा उस्ताद था, खैर जान फैज़। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके गाने अभी भी गाते हैं मैं।
गाता हूँ ओ निंदम निंदम नवशिन भी जनिल मनवशिन भी अला मंदिरवा मनी दोस्त शुत निंदम नवशिन भी जनिल मनवशिन भी। ये कंपोज है इनकी, हमें पेश किया। अच्छा सिरा की गया हो तुझे दर्द फिराक में भेंद से यार मरी ते मरी वो मिठड़ा हो तुझे दर्द फिराक में। ताज मोहम्मद ताजल साहब, आप ये बता दें कि आपने सारे आपको उस्ताद मान रहे हैं, ये फ़न को आपने फैलाया है, इस लोगों को इस काम पे आपने लगाया है, इसकी तमाम बेरोज़गारी गुर्बत के ज़िम्मेदार भी मुझे लगता है कि आप हैं कि आपने ये सारा काम किया है। सर मैं तो बशीर साहब मुझसे पहले था, अल्लाह इनको ज़िंदगी देवे, इन्होंने बहुत नाम कमाया। मैं तो 1966 में आया हूँ, जिस टाइम सर्दी भी हम लोग ने काटा है। इस फ़न के लिए काटा है कि अपना कौम के लिए हमने काटा है। हमने तो ये बुराई नहीं किया कि नया नया टैलेंट हमने पैदा किया है, उनको सिखाया है मैंने। तो इतने इतने बर्फ़ों में मैं बाप बेटे हम लोग नौकरी करते थे रेडियो में, उसमें कोई नौकरी नहीं करता था, हम लोग आए हैं तुरबत से आए। तो बात कहने का ये कि जितना सरल आप समझते हैं कि अच्छा काम आपने सिखाया है, आप खुद पछता रहे हैं, नहीं पछता रहे? आने वाली नस्लों को आप क्या कहेंगे? आने वाला नस्लों को मैं ये कहूँगा कि जब हमारा जो इज़्ज़त नहीं रहा, अगले नस्लों को किस तरह इज़्ज़त होगा। मेरा लड़का ड्रामा नवाज अच्छा है, रियाज सागर साहब, मेरा एक बैठा है टीवी में प्रोड्यूसर है, समझे। मैंने बेटों को भी ख़राब किया, इधर ही ले आया हूँ, मगर मौसीकी में किसी को नहीं लाया, बैंजू बजाने में किसी को नहीं लाया, बैंजू घर मैंने कभी नहीं ले गया। इतना अर्सा मैंने काम किया, क्यों? मुझे पता था फनकारों का एंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑफिसर अच्छा होए, प्यार देने वाला होए, फनकार प्यार का भूखा है, प्यार का। एक प्यार दे दो, उसका फ़न आगे पहुंच जाएगा। कुछ ही से दूसरा एक तर्ज मैंने बनाया है, आपने कहा बहुत अच्छा, तो मेरा दिल बोलता है और बनाएं। हमने इसी तरह तर्ज किया। नहीं कर सकते, गोली तो है ना उनके पास, मार दो हमें, बस जान छूट जाएगी आप लोग की। बशीर साहब बात ये है कि आपने सही बात किया है, ऐसे भी आएंगे, सीट किसी का नहीं है। ये 2 साल 3 साल चलो 5 साल और बैठे। फनकार तो फनकार है नहीं, फनकार तो रिटायर भी नहीं हो सकता है जब तक बीमार नहीं होवे, जब तक मजबूर नहीं होवे, फनकार रिटायर नहीं होता है। 133 साल वाला भीख मांग सकता है कि 2 लाख के नाम पर मुझे, हम क्या करें? और एक बात मैं करना चाहता हूँ उस्ताद ताज मोहम्मद ताजल साहब से, उस्ताद मोहम्मद बशीर साहब से, कि उस्ताद जी अगर ये हमारे अफसरान बैठे हुए कहते हैं कि आप लोग बुढ़े हो गए हो, आप लोग रिटायर हो गए हो, जब एक अफसर सरकारी अगर वो रिटायर होता है तो उनको बाइज्जत तरीके से उनको एक पेंशन के देते हैं, उसको रिटायरमेंट ही देते हैं, उसको बाइज्जत तरीके से रुखसत करते हैं। और हम लोग का फनकारों को आप लोग रिटायर करते हो तो बेइज्जत करके रिटायर करते हो, जिससे आप लोग बैठे हुए इन सीटों पर। नहीं, ये बात नहीं है जी नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर खिदमत है। धरना प्रोग्राम जारी है। मुग़रमान, ये तो लफ्ज़ मैंने पहली मरतबा सुना है, लेकिन ये पता लगेगा कि ताज मोहम्मद आप ये बताएं कि ये पहली बात तो ये कि मुग़रमान क्या है और मसाइल आपके क्या हैं। पहले तो हमें ये बताएं मुग़रमान क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बड़े ख़ान साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। मैं सर पहले 8 साल का था तो मैं सकाफ़ती रक़्स करता था। उस्ताद आशिक हमारे उस्ताद थे, उस्ताद गुलबहार हमारे उस्ताद थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आस्ते 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 फिर मैं म्यूज़िशन में आ गया। मैं ख़ुद शहनाई भी बजाता हूँ, ढोल भी बजाता हूँ। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुग़रमान की फ़ील्ड में मैं आ गया। तो हमारे केच मकुरान ग्वादर पसनी में तुरबत में वहाँ पे जो मछेरों का जो सीज़न होता है ना, तो वहाँ पे वो ख़ुद ब खुद आपस में जो है ना प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें जो है ना मुग़रमान बजाया जाता है। उसका ऐसा कोई प्यारा मीठा कोई साज आवाज़ है, तो उसमें कोई चाप या डांस या कोई उसको करना नहीं आए वो भी इंशाल्लाह आकर
اس کا بھی دل میں یہ جوم اٹھے گا کہ میں بھی ان کے ساتھ لگا پڑوں. بات یہ ہے کہ جو ہمارا حق ہے سر وہ ہمارا حق نہیں مل رہا ہے. ہم لوگ یہ گزارش کریں گے عمران خان سے، بلوچستان والوں کا حق نہیں مل رہا ہے، سندھ والوں کا ملا، پنجاب والوں کا ملا، سرحد والوں کا ملا. ہمارا وہ غلطی کیا ہے کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، کہ ہمارے قابل احترام ہمارے بڑے بڑے فنکار آج رو رہے ہیں. ہم تو ان کے یاد کے بچے ہیں، جب ہمارے بڑوں کے ساتھ نہیں ہمارے سے کہاں سے آئے گا. بات یہ ہے کہ میں گلگت بلتستان بھی گیا ہوں، اپنا فن کا مظاہرہ کیا ہوں، ثقافتی بلوچستان کی نمائندگی کیا ہوں، دبئی میں بھی میں گیا ہوں، عمان میں بھی گیا ہوں. الحمدللہ پاکستان کے الحمدللہ کوئی کونا نہیں ہے جو میں نہیں گیا ہوں، استادوں کے دعاؤں برکتوں سے. پھر بھی آج ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. ایک دن میں بلوچستان اسٹیشن سے آ رہا تھا تو عجیب ایک بات مجھے یاد آ گیا، بولنا تو نہیں ہے لیکن میں بول رہا ہوں. تو میں اپنے بچے کو خود کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ڈھول تھا، میرے بچے کے ہاتھ میں ڈھول تھا، کسی گاڑی والے سے بھیک مانگ رہا تھا. میں موٹر سائیکل سیٹ پہ کیا تو میں رو رہا تھا. میرا دوست کہہ رہا ہے کیوں رو رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں یار میرے بچے کو کس نے یہاں پہ لایا ہے، شاید یہ بچہ گم ہو جائے، یہ بچے کے ساتھ اور حادثہ ہو جائے. تو میرا دوست مجھے کہہ رہا ہے یار خود فنکار ہو تو شاید آپ کے بچے بھی فنکار ہوں گے. میں نے بولا مجھے ایسے فنکاری نہیں چاہیے. اور میری امی جان کسی جھوپڑی میں بیٹھ کر پکوڑا بیچ رہا ہے، پاپڑ سودا کر رہا ہے. کیوں؟ میرا والد صاحب نے گلبار والوں کے ساتھ بلوچستان کا نمائندگی کیا، قربانیاں دے دی. میرے والد صاحب بھی وفات ہو گئے. اس ٹائم سے آج تک ہمیں کیوں ہمارے ساتھ کیوں ناجائز ہو رہا ہے؟ اب میں تاج محمد مغرمان والا اختر چنال کے ساتھ کام کیا ہوں، محمد بشیر کے ساتھ میں نے کام کیا، تاج محمد تاجل کے ساتھ میں نے کام کیا، علی عادل بینجو نواز تاج محمد تاجل کا شاگرد ہے، اس کے ساتھ میں نے کام کیا. میں نے تاج بلیدی کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے، میں نے وسیم کے ساتھ کام کیا، میں نے مراد پارکوئی کے بیٹے کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے سمینہ کول کے ساتھ کام کیا، میں نے کراچی والے فنکاروں کے ساتھ میں نے کام کیا. میں بلکہ حیدرآباد میں بھی کام کیا ہوں، وہاں پہ بھی مغرمان والے تھے. میرا وہاں پہ مقابلہ ہو گیا، اللہ کے حکم سے پہلا پوزیشن میں نے اٹھا دیا. کس کے نام سے؟ اپنا نہیں، بلوچستان کا نام تھا نا. آج میں اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوں، میں اتنا افسوس کر رہا تھا. میں نے بولا یا اللہ یا ہمارے ساتھ انصاف ہو یا عزت کا موت دے دے بس. اس سے بہتر یہی تھا کہ کسی موٹر سائیکل والے کے ساتھ کام کرتے تھے. استاد بشیر کے بعد جیسے کسی نائی کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے تھے، وہ آج تک ہم لوگ کا بچوں کا دم گزر چلتا تھا. سر بات یہ ہے کہنے کا، میرا والد صاحب، میرا دادا، میرے پر دادے، ہم لوگ ساروں نے بلوچستان کے لیے خدمت کیا. ڈبل روڈ تک آج تک ہمارا نسل بیٹھا ہوا ہے. کسی نے ایسے نہیں کیا یار ان کو کچھ دے دیں، ان کو کوئی نوکری دے دیں یار. یہ اس ٹائم سے سردی گرمیوں میں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. سر انصاف نہیں ہے. اور ہمارا ریسل روم ہے بلوچستان پی ٹی وی میں، وہ ریسل ہم لوگوں سے ان لوگ ظالموں نے وہ دوبارہ ہم لوگوں سے لے لیا. وہاں پہ ایک عرصہ کوئی ٹینس گیم چل رہا تھا، ٹینس گیم بند کیا، ابھی اس کو تالا لگا. ہم لوگ کے ساز اور زیمل سارے باہر نکالے گئے. کیوں ہم لوگ کے ساتھ ایسے ناجائز ہو رہا ہے؟ کیوں؟ ہم لوگ کا غلطی وہ کیا ہے؟ جس دن سے کرونا شروع ہے آپ لوگ یہ ہمیں بتائیں، دنیا کا کاروبار 5 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے ایشو ہو گئے، ان کا تو کاروبار چل رہا ہے. ہم فنکاروں کے، ہم موزیشنوں کے، ہم ڈھول والوں کے، ہم ثقافتی رقص والوں کا، ہم لوگ کا آپ لوگوں نے کیا اعلان کیا؟ ہمارے لیے بھی تو کچھ کریں. اربوں روپے وہاں پہ خرچ کیے گئے ہیں، آپ کو نہیں راشن پہنچایا گیا ہے وہاں پہ؟ نہیں سر، کسی فنکار کو نہیں پہنچایا گیا ہے. سر وہ چند فنکاریں تھے ان کو ملا. چند فنکاروں سے کیا ہوگا سر؟ آپ معائنہ تو کریں سر. ہم لسٹ آپ لوگ کو دیں گے، آپ لوگ دیکھیں تو صحیح. الحمدللہ کتنا بڑا تعداد ہے بلوچستان کے فنکاروں کا، آپ لوگ خوش ہو جائیں. بشیر صاحب آپ لوگ کوئی احتجاج کرنے آپ بتا رہے تھے جا رہے ہیں، تو کیا احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ کرنے جا رہے تھے صاحب جی اپنی فریاد پہنچانے کے لیے. وہ آپ نے مہربانی کر دی، ہم لوگ پر بڑی مہربانی کر دی. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے. جو ہماری فریاد آپ پیش کر رہے ہیں، ہم کس گھر پر جائیں بھیک مانگے؟ سیکرٹری کے پاس جائیں، وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں، کوئی فریاد سننے والا ہے ہی نہیں نا. وزیر کلچر کے پاس گئے ہوں، میں گیا ہوں، فریاد دی میں نے اس کو، میرے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے. کوئی سننے والا ہو نا. میں آپ کہتے کہ افسر ہمارے بیٹھے کیا ابھی نہیں، یا آپ پیش کرو گے؟ نہیں، آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، وہ احتجاج کیا ہے اور کہاں پہ کرنے جا رہے ہیں؟ احتجاج کرنے جا رہے تھے صاحب. ہم بولے جا کے دھرنا دیں گے.
टीवी के सामने या इसके MP हाउस है, इसके सामने बैठेंगे, फरियाद अपना पेश करेंगे। वजीर जाते जाते उसमें तो कोई नवा सुन ले। तो एहतजाज में क्या करने जा रहे हैं? कोई नया एहतजाज करने जा रहे हैं? धरना नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसके सामने बैठूंगा और एक घासलेट का बोतल भी सामने साथ रखूंगा। अगर मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी, घासलेट अपने पर डाल के आग लगा दूंगा बस। इनके तकालीफ, इनके दुख ये बेहतर खुद अपनी जानते हैं, हम इसके दुख में बराबर के शरीक हैं। क्या बयान करते हैं? हम पूछते हैं कि इनके घरेलू हालात क्या हैं। उस्ताद ताजल साहब, आपको कोई मुआवजा, कोई तनख्वाह, कोई सिलसिला क्या है? आप घर के मामलात किस तरह से चलाते हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान बहुत है। रेडियो में रिटायर हूँ, पेंशन मिल रहा है, घर का हालात चल रहा है थोड़ा बहुत। दूसरी बात यह है कि हमें गवर्नर से अर्ज़ करना है कि जितना हमारा दर्द है, वज़ीर आला से अर्ज़ करते हैं कि जितना हमारा दर्द दुख है फ़नकारों का, ये हमारा दर्द जितने भी उसको ऊपर पहुँचा देवे ताकि हमारा मुश्किल आसान हो जावे। अब उस्ताद बशीर साहब, आप क्या समझते हैं? आपके हालात कैसे हैं? आप समझते हैं कि हुकूमती इमदाद आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके हालात ठीक हैं, आपको मौका अपनी सिंगिंग में नहीं मिल रहा है, गुलकारी में नहीं मिल रहा है, या आपकी माली इमदाद की ज़रूरत है आपको? सर जी मैं क्या बताऊं, ये मैं बता चुका हूं कि हम वज़ीर आला के दफ्तर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, यार टाइम नहीं है, वज़ीर आला तो इधर है नहीं। अगर हम सेक्रेटरी के पास जाते हैं, बोले सेक्रेटरी साहब तो सिंध गया हुआ है, इधर मौजूद नहीं है। बाबा मैं भूखा हूँ, मेरी मदद करो। आगे से कोई बात करने वाला ही नहीं, बोलते तुम्हारे कागजात रखे हुए और इंशाल्लाह तो जल्दी कर देंगे। बाबा ये 5 किलो लाया, दूसरा अल्लाह की कसम एक दिन 10,000 रुपया मुझे कहता 10,000 ले लो ना। हम बोले 10,000 में मैं क्या लूँ, बिजली का बिल भी पूरा नहीं होता, गैस का बिल भी पूरा नहीं होता। तो हम गए हुए हैं, आप वज़ीर कल्चर के घर में गए हैं, उसके पास गए, गाना सुनाया उसको कि साथ हमारी हालात देखो। कोई सुनने वाला है नहीं ना बलूचिस्तान में, तो मैं किसको सुनाऊँ? मैं आंसू किसके लिए साफ करूँ बताओ? ये उम्र मेरी, भीख भी नहीं मांग सकता हूँ, अवार्ड बेच भी नहीं। मुझसे अवार्ड ले ले 20,000 में। कितने अवार्ड आपको मिले? 133 अवार्ड है। कौन कौन से? हैदराबाद से लिया हूँ साहब। सदारती अवार्ड कौन कौन से? सदारती अवार्ड 2 है, 2 सदारती अवार्ड है। अच्छा जश्न खैबर का अवार्ड मेरे पास है, अल्लाह लाहौर के 6-7 अवार्ड में मेरे साथ है, कोयटा के दर्रा बोलान। सदारती अवार्ड के साथ कोई मुआवजा भी तो मिलता है, मिला था आपको? जी हम लोग को उस टाइम पर मिला है, मेरे को ताजल को जब 2 लाख रुपया था उसकी कीमत, अब तो 10 लाख है। तो 2 लाख साहब ये 2 साल तक तो हम नहीं खा सकते, बच्चे हैं, नौकरी मुझे नहीं है, बच्चा मेरा। पर प्रोग्राम आप लेते कितने हैं वैसे? जब आपकी पीक टाइम था, आप प्रोग्राम करते थे, जब स्टेज पे जाते थे तो कितने पर प्रोग्राम के कितने लेते रहे आप? ये 14 अगस्त भी हमारे को नहीं मिला, ये 4 साल से। 14 अगस्त भी नहीं, 23 मार्च भी नहीं, ये सब ऐसे ही प्रोग्राम चले गए हमारे से। न गवर्नमेंट ने बुलाया, न इस्लामाबाद वाले। जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसे किस प्रोग्राम में मिले मेरे को? हाँ जी, बस साहब ये मैं बताऊँ, जफरुल्लाह के बेटे की शादी में मैं गया था, 1,15,000 मिला था। जिंदगी में सबसे बड़े प्रोग्राम के आपको 1,15,000 रुपए मिले? हाँ। ये क्या बात हो? ये लोग तो 10 लाख रुपए ले रहे हैं, 20 लाख रुपए ले रहे हैं। प्यार बहुत करते थे साहब। ये तो उस्ताद मेरा बैठा है, जब 1-1 रुपये की चाल थी ना, उस दौर से हम फनकार हैं। अच्छा सर फनकार का ये है, मैं बताता हूँ कि मैं मुझकी थोड़ा बहुत गुजारा करता हूँ, ज़्यादा नहीं। जी, फनकार को रात को मिलता है, 2-3 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। फनकार का दिल बड़ा है, 2-4 मेहमान आ जाता है। जी नहीं, तकसीम कर लेते हैं। तकसीम नहीं, फनकार का दिल है बड़ा, जो भी मेहमान नवाजी में तेज है। उस्ताद सही बोल रहे हैं, समझे? अब जब भी मिलता है कोई भी, चाहे फनकार होवे, एक दिन का बादशाही है, 3 दिन बाद बादशाही खत्म, क्योंकि दूसरों को खिलाता पिलाता आ जाती है, बेटियां आ जाती है, क्या करें हम? ये देखो बोल रहे नहीं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी दिया, मेरे वालिद ने दिया, मैंने दिया। मगर हमारा ये है कि हम बलूचिस्तान का फ़नकार हैं, किसी को कह नहीं सकते कि ये लुआत हमारा इस तरह है, चाहे मजबूर होवे, भीख से मरे, भूख से मर जावे, फिर भी किसी से नहीं मांगेगा। इस तरह नहीं। अल्लाह ताला बोलता है मैं खुद बड़ा हूँ, मैं खुद सबको संभालने वाला हूँ।
मगर मेरा एक बात है कि आप लोग जो बड़े बड़े सीटों में बैठे हुए हैं भाई, इन लोगों का कदर करें। 3 अवार्ड मुझे रेडियो ने दिया है, रेडियो 3 अवार्ड मुझे इस्लामाबाद टीवी ने दिया है, रेडियो ने मुझे दिया सिल्वर जुबली, सुपर स्टार अवार्ड, 6 अवार्ड तो ये हैं, 28 अवार्ड मुझे मिला है। अच्छा, पीटीवी में तो प्रोग्राम बहुत कम हो गए हैं, पीटीवी में तो प्रोग्राम बहुत कम हो गए हैं, और आप समझते हैं कि कोई और तरीका निकल सकता है कि जहाँ पे फनकारों को कोई ऐसा मौका मिल साहब सके? वजीफा दे दे हमें। नहीं, वजीफे नहीं, आपके फन का मुजाहरा हो ना, कुछ देंगे तो कुछ लेंगे ना। बिल्कुल सर, एक गैदरिंग होता है हमारा, कभी कभी मुझे ले जाते आप हैं। लोग मिलके क्यों नहीं है कि ऐसा स्टेज प्रोग्राम बना लें कि जहाँ पे सारे फनकार अपने फ़न का मुजाहरा भी करते रहें और साथ में दाद भी वसूल करते रहें और आपकी इमदाद भी होती रहे? क्या आप इस तरह का प्रोग्राम नहीं रखते हैं? सर, हम फनकार का हमें बुलाते हैं तो हम जाते हैं। नहीं, आप खुद से कर लें। सर, आपने बुलाया, कहाँ से करें? आप किसी भी अब ये बशीर, देखिए, आप दुनिया में चले जाए, बड़े बड़े फनकार, अब बशीर साहब है, ये है, इनके पास क्या है जो ये एक प्रोग्राम करेगा ताकि हमें कुछ मिले। फैज़ मोहम्मद बलोच एक नाम था, एक शाम किया है सेक्रेटरी ने, ज़फ़र बुलेदी साहब ने 1 साल शाम किया है, कुछ फनकारों को मिल गया है 1 साल। मैं तो कहता हूँ हमेश इनका होना चाहिए, मुरीद बुलेदी, फैज़ मोहम्मद बलोच, मुरीद बुलेदी, मोहम्मद जाड़ोक, मोहम्मद बशीर अगर ज़िंदा है, अभी इसका एक प्रोग्राम कर देवे, इसका दिल बढ़ जाएगा, आगे काम करेगा ये। क्यों कि अब ये बैठा है बेचारा, आंसू निकल रहा है, मेरा भी दिल में इतना, मेरा दिल में दर्द होता है। भाई मेरे पास आते हैं, रेडियो में मेरे पास बैठते हैं। एक लेडीज़ आया बशीर के सामने, कितना रो रहा था बताओ, 500 रुपया उसको दिए थे उस्ताद ने। अच्छा, ये बता दें ताजिल साहब, ये बता दें, आप जब कंपोज कर रहे होते हैं किसी भी मौसीकी को, तो आप समझते हैं कि आपका मकबूल तरीन कंपोजिंग कौन सा से कंपोज किया हुआ गाना है? कोई है आपको याद है? सर, मुझे झूठा बंदा मैं नहीं हूँ। जब मैंने ग्रामर फोन रिकॉर्डिंग किया मोहम्मद जाड़ुक का, इसने सुना होगा ये हमारा, वो रिकॉर्डिंग आज तक सदाबहार है हमारे, जो हमने कैसेट दुनिया में दिए आज तक सदाबहार है। किसने गाए थे? हाँ, कासिम आमिर ने गाया था, बशीर ने गाया था। बशीर ने कौन सा गाना गाया जो आपको पसंद है? बशीर को खुद बोलना उस्ताद चाहिए। बशीर बता दें आप कोई साहब जी, एक। वो फैज़ बलोच को अल्लाह जन्नत नसीब के उसका दिल मांगा शायरी इसकी थी और तर्ज उस्ताद की थी। नाराज में फैक न हो दिल रुबा, हर फक न काबे हो मालका, ये शायरी है सही, ताज मोहम्मद ताजिल की उस्ताद की तर्ज है ये। बाद वक्त वारिक ने खंतनूर दीदार ना जानी कतनूर, हाँ नाराज मफ़े वल्ला नाराज मफ़े कना हो दिल रुबा, ना हुस्न ना जानी ही उर्फिदा। वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा ताजिल साहब, आप ये बता दें कि कोई शायरी भी आप करते रहे? सॉन्ग की शायरी करते रहे? सर, शायरी तो मेरा सबको पता है, घरों में शादियों तो में आप भी। ऐसा शेर सुना दें, कोई ऐसा शेर सुना दें जी जो मुर्दा आपके जो सिस्टम है ये जिंदा हो जाए। कोई ऐसा शेर है आपके पास? है सब जी। गुलहे दिलमनी बुरत के हर सांग गई जुरत, गुलाए दिलमनी बुरत के हर सांग गई जुरत। ये क्लासिकल आप सुना। इस शायरी को 5 बंदों ने गाया है, मकरान के, कराची के, अब चौकी के, बशीर के अलावा बशीर ने भी गाया है, मोहम्मद अली ने गाया है, मोहम्मद यूसुफ ने गाया है, साजिद वली ने गाया मशकत से। इसी शायरी को इतना पसंद आया उनको। तो ऐसे हमारे कुछ शायरी इसी तरह हैं कि 4 बंदों ने गाया, वो भी अच्छा फनकार। बशीर ने गाया, मुरीद बुलेदी जो था बहुत मशहूर फनकार था हमारा, इधर का तंगवानी का था, डेरा बुगटी के इलाके का, उसने मेरे शायरी गाया है। मकसद वो आर्टिस्ट नहीं है जिसने मेरा कंपोज, मेरा शायरी नहीं गाया है। जितने भी हमारे बलूची आर्टिस्ट हैं, बिरावी आर्टिस्ट हैं, सब ने 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 कलाम गाया 40 है। गाने इसके मैंने गाए, 40। ये अपना जो है गुलबहार, आप
झूमते तो हैं स्टेज पे, जी सर। बैठे बैठे भी कोई झूम सकते हैं आप? कभी सर झूमना छोड़ा ही नहीं हम लोग को, दिल ही तोड़ दिया इन लोगों ने झूमना बिल्कुल। जब इस 6 महीने से सर हम लोग घरों में बैठे, वो झूमने वाला जान ही हम लोग का बंद हो गया कि हम लोग गिल भी नहीं अभी तेरा सकते। एक गाना गाता हूँ तेरे तेरे नाम का, और साहब जी को और थोड़ा सर फूला परवकना के लखी जनड़ के लकना जो तेटी पवचांदी ना छल वसदा लैलीना डी होती अड़ी धोल धमाम वला धोल धमाम अल्लाह धोल धमाम टिकी निगारे दकन पम की का सितार थप्पी सबर गुड्डी सबर मक्खी सबर जानी बारट वर। वाह वाह जी वाह, वाह, वाह। वाह वाह वाह। जी नाज़रीन, आज हम देख रहे हैं कि आज हमने जिन गमगीन फनकारों को बुलाया था, आज जिनको जो परेशान हाल थे, आज के प्रोग्राम में हमने दोबारा इनको जो है मिजाजन हौसला दिया है। आज इनके दर्द में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन इनकी खुशियाँ जो है, जब ये झूमते हैं तो हमारा दिल भी झूम उठता है, जब ये गाते हैं तो हमारे लब भी इनके साथ जो है उनके साथ जो है चलना शुरू कर देते हैं, हम भी उनके साथ जो है बोलना शुरू कर देते हैं। और यकीनन ये एक ऐसा इशू है जिनका ताल्लुक़ जो है अदाराए सकाफ़त से है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न से है, जिनका ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान से है, जिनका ताल्लुक़ मौजूदा हुकूमत से है, वफाक से है, बलूचिस्तान से है। मैं उनकी जगह पे, इन फनकारों की जगह पे, क्योंकि ये गा सकते हैं, ये रुला नहीं सकते हैं, ये लोगों को हंसा सकते हैं, ये रुला नहीं सकते। मैं दसबस्ता उन तमाम आके मैं से गुजारिश करता हूँ, दसबस्ता रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन फनकारों की जो हौसला अफजाई है वो फौरी तौर पे होनी चाहिए, इनकी दुआएं लेनी चाहिए, इनके जो लोग इनके पीछे जितने हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनकी हौसला अफजाई करने के लिए आगे आएँ, अपने सकाफ़त को, अपनी ज़बान को, अपने लोगों को दिखाने के लिए यही तो लोग होते हैं जो आगे हमें लेके चलते हैं। ख्वाहिश हमारी भी यही है कि इनकी ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी इनकी बदल जाए, ताकि ये खुशहाल, हम खुशहाल, हम खुशहाल, मुल्क खुशहाल। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।